جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے، دولت دیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم وہ نہیں جسے نادان تو بگاڑ سکے، ہم وہ نہیں جسے نادان تو بگاڑ سکے، کدھر خیال ہے اتنی تیری مجال نہیں، کدھر خیال ہے اتنی تیری مجال نہیں۔ دور کر لو تم اپنی غلط فہمیاں، دور کر لو تم اپنی غلط فہمیاں، دیکھ لو سامنے سب کی تصویر ہے، دیکھ لو سامنے سب کی تصویر ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمارے ایک سنی ساتھی ہیں، انہوں نے اس دور کا ایک جو بڑا فتنہ ہے مرزا علی انجینئر، اس کی ایک ویڈیو کلپ مجھے بھیجی اور انہوں نے کہا کہ مولانا اس کا جواب براہ کرم عنایت فرمائیں۔ تو میں نے سوچا کہ یہ اعتراض جو مرزا علی انجینئر نے کیا ہے بے شمار لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہوگا اور اس دور میں چل رہا ہے، تو اس لیے میں نے مناسب جانا کہ اس انجینئر کے دھوکے کا مختصر طور پر میں جواب دے سکوں۔ تفصیل تو ہمارے علماء دے چکے ہیں، تفصیلی جوابات تو علماء دے چکے ہیں، میں مختصراً اس کا جواب عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیارے دیوانوں، اسی غرض و غایت کی مناسبت سے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، بعض وقت مخالف کے منہ سے بھی بات سچ نکل جاتی ہے۔ تو ایسے ہی مرزا علی انجینئر جو خود بہت بڑا فتنہ ہے، اس نے اپنی زبان سے یہ نہ چاہتے ہوئے بھی سچ اگل دیا کہ 1866 عیسوی میں مدرسہ دیوبند بنا، اس سے پہلے دنیا میں کوئی ایک دیوبندی بھی نہیں تھا۔ پھر مرزا کہتا ہے کہ بھلا بتائیے 150 سال جس فرقے کی عمر ہے وہ فرقہ حق پر کیسے ہو سکتا ہے؟ اب پھر مرزا کہتا ہے کہ دیوبندی کہتے ہیں کہ ہم تو اسلاف کے امین ہیں، کیونکہ ہم تو حنفی ہیں، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مخلد ہیں، لہذا ہم اسلاف کے ماننے والے ہیں، اسلاف کے امین ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اب یہی بات کہ دیوبندی 150 سال سے ہم کہتے ہیں تو لوگ نہیں مانتے۔ تو مرزا نے جب یہ کہا کہ ہم حنفی ہیں، دیوبندی کہتے کہ ہم حنفی ہیں اس لیے ہم اسلاف کے امین ہیں، تو مرزا کہتا ہے تو پھر تو بریلوی بھی حنفی ہیں، ان کا مدرسہ منظر اسلام 1904 عیسوی میں بنا، یہ بھی بات بالکل سچ اس نے کہی۔ لیکن اب یہاں پر مرزا علی انجینئر جو دھوکہ دیتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اس طرح ہندوستان میں دیوبند اور بریلی دو شہروں کے نام سے دو فرقے بن گئے، یہ کہہ کر ایک بہت بڑا دھوکہ دے رہا ہے، اور اسی دھوکے میں آج ہزاروں مسلمان، ہزاروں نوجوان اس کے اس دھوکے سے دھوکہ کھا چکے ہیں اور برسوں کا جو پرانا عقیدہ ہے وہ چھوڑ چکے ہیں یا چھوڑ رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیارے دیوانوں، اب حقیقت یہ ہے کہ دیوبندی اور غیر مخلد وہابی دونوں میں فرق کیا ہے کہ غیر مخلد کسی بھی امام کی تخلید سے انکار کرتا ہے اور ان کے الگ وہابیانہ عقائد ہیں، لیکن دیوبندی کیونکہ غیر مخلد اہل حدیث اماموں کی تخلید سے انکار کرتا ہے اور ان کے اہل سنت کے مخالف عقائد ہیں جن کو وہابیانہ عقائد کہا جاتا ہے، یہ غیر مخلد وہابیوں کا معاملہ ہے۔ لیکن دیوبندی عقائد میں وہابیوں کے ساتھ ہیں، یعنی جو عقیدے وہابیوں کے ہیں وہی عقیدے دیوبندیوں کے ہیں، لیکن تخلید میں وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار ہیں، یعنی تخلید کو مانتے ہیں اور وہ مخلد ہیں۔ اسی لیے علماء ان دیوبندیوں کو گلابی وہابی کہتے ہیں۔ غیر مخلد پکا وہابی ہے اور یہ غیر دیوبندی گلابی وہابی ہیں، عقائد وہابیوں کے ہیں لیکن اماموں کی تخلید کو مانتے ہیں۔ لیکن دیوبندی علماء نے اللہ اور رسول کی شان میں جیسی گستاخیاں کی ہیں ویسی گستاخیاں 1400 سال میں کسی مسلمان نے نہیں کی، کسی عالم نے بھی نہیں کی ہیں۔
अब देवबंदियों के क्या गुस्ताखाना अकायद हैं, उनकी क्या गुस्ताखियाँ हैं अल्लाह रसूल की शान में। मेरे चैनल मोहम्मद हफीज अहमद खान रज़वी पर एक वीडियो मौजूद है, बद मजहब कौन के उन्वान से, उसे आप देखकर देवबंदियों के अकायद क्या है आप बखूबी उसे जान सकते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो इस तरह मदरसे देवबंद और उनके उलमा की गुस्ताखाना इबारत की वजह से उसको देवबंदी मजहब कहा जाने लगा। जबकि दूसरा तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैह रहमत रिजवान ने कोई नया अकीदा ईजाद नहीं किया, ना कोई नया अकीदा पेश किया, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें जो खुदादाद इल्म और सलाहियत से नवाजा था, उस इल्म और सलाहियत से, अपने इल्म से आपने अहले सुन्नत के अकायद का रोशन मुदल्लल सबूत पेश किया और उस दौर के जितने बदअकीदा बातिल फिरके थे उनका रद्द बलीग किया, हर एक का भरपूर जवाब दिया आपने। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो ना आला हजरत ने अल्लाह रसूल की शान में, ना सहाबा की शान में, ना औलिया की शान में कोई गुस्ताखी भी नहीं की, ना कोई नया अकीदा पेश किया, ना कोई नया अकीदा खुद से गढ़ा, बल्कि वही अहले सुन्नत जमात जो 1400 साल से जो मसलक चला आ रहा है, जिसका सारे सहाबा का, ताबईन का, तबे ताबईन का, इमाम मुज्तहिदीन का, औलिया कराम का, मुहद्दिसीन का, मुफस्सिरीन का, जिस जमात से अहले सुन्नत जमात से ताल्लुक था, उसी जमात के अकायद को आपने मुदल्लल तौर पर अवाम के सामने पेश फरमाया और वहाबियों का, देवबंदियों का रद्द बलीग किया आपने। और रद्द बलीग करने के बाद मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवान, हुआ क्या, ये वहाबी आला हजरत के किताबों का तो जवाब नहीं दे सके, लिहाजा उन्होंने क्या किया, इसी अहले सुन्नत जमात को जिसका आला हजरत ने रोशन सबूत पेश किया, आला हजरत के शहर बरेली की निस्बत की वजह से जवाब तो नहीं दे सके आला हजरत के इल्म का, उनकी किताबों का, लिहाजा उन्होंने क्या किया, वहाबियों ने, देवबंदियों ने क्या किया, आला हजरत का ताल्लुक चूंकि बरेली शहर से था, उसीलिए इस अहले सुन्नतुल जमात को बरेलवी फिरका है, नया फिरका है, रजाखानी फिरका है करके बदनाम किया गया। और इस दौर में भी यही किया जा रहा है कि अहले सुन्नतुल जमात जिसको आज के दौर में बरेलवी कहा जाता है, उसे नया फिरका, रजाखानी फिरका करके आज भी बदनाम करने की मुहिम सुबह से शाम तक जोरों पर पूरी दुनिया में चल रही है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अब अहले सुन्नत व जमात जिसे बरेलवी आज के दौर में कहा जाता है, हकीकत में ये नाम बरेलवियों का, बरेलवी मुखालिफीन ने दिया था और ये पहचान बन चुका है। तो बरेलवी ही यानी अहले सुन्नत व जमात ही पुराना मजहब है और हक मजहब है। ये मैं सुन्नी उलमा की किताबों से नहीं, वहाबी उलमा के किताबों के कुछ हवाले पेश करके अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि मुदई लाख पे है भारी गवाही तेरी। सुन्नी उलमा कहेंगे तो नहीं मानेंगे, मैं वहाबियों की कुतुब का हवाला देकर कह रहा हूँ कि बरेलवियत यानी अहले सुन्नत जमात ही हक मजहब है। तो जब अहले सुन्नत हक है तो पता चला जितने बातिल फिरके निकल रहे हैं वो खुर्ब क़ियामत के हैं और ये बातिल है। पहला हवाला ये है कि वहाबियों के एक बदनाम जमाना मुसन्निफ है एहसान इलाही ज़हीर, उन्होंने एक बदनाम जमाना किताब लिखी जिसका नाम अल बरेलवियत था, जो झूठ और दज्जल का पलंदा है। लेकिन ना चाहते हुए भी उन्होंने एक हकीकत का एतराफ कर लिया एहसान इलाही ज़हीर साहब ने, और वो उन्होंने कहा, ये हकीकत का एतराफ किया उन्होंने। इस किताब के सफ़े नंबर 7 पर एहसान इलाही ज़हीर साहब लिखते हैं कि ये जमात यानी बरेलवी जमात अपनी पैदाइश और नाम से नई है, लेकिन अफकार व अकायद के एतबार से खदीम है। बरेलवी जमात जिसे अहले सुन्नत कहते हैं वो अपनी पैदाइश के नाम से नई है, बरेलवी नाम नया है, लेकिन इसके अफकार व अकायद जो हैं वो खदीम ज़माने के मुसलमानों के हैं। एक और गैर मुक़ल्लिद आलिम शेख मोहम्मद इकराम ने अपनी किताब मौजे कौसर में लिखा, सफ़े नंबर 70 पर लिखते हैं कि अहमद रज़ा ने निहायत शिद्दत से खदीम हनफी तरीक़ों की हिमायत की है। 2 हवाले गुजर चुके। अब तीसरा हवाला देखिए। एक और मशहूर गैर मुक़ल्लिद आलिम है
मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी साहब ने इसी हकीकत का इजहार करते हुए लिखा कि अमृतसर में मुस्लिम और गैर मुस्लिम यानी गैर मुस्लिम आबादी में हिंदू और सिख मिलाकर थे। तो सनाउल्लाह अमृतसरी साहब लिखते हैं कि अमृतसर में मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों मसावी हैं, बराबर बराबर है। उसके बाद आगे लिखते हैं अपनी किताब में 80 साल कबल सब मुसलमान, पूरे मुसलमान अमृतसर में उसी ख्याल के थे जिनको बरेलवी हनफी ख्याल किया जाता है। किताब का नाम शमे तौहीद, सफ़े नंबर 40 पर उन्होंने ये लिखा। लेकिन बाद में वहाबियों ने नए एडिशनों से इस इबारत को निकाल दिया और पुराने एडिशनों में ये इबारत मौजूद है। आखिरी हवाला पेश करके अपनी बात पे ख़त्म कर रहा हूँ कि उसी गैर मुक़ल्लिद आलिम मौलवी एहसान इलाही ज़हीर ने अपनी उसी किताब अल बरेलवियत पर सफ़े नंबर 10 पर क्या लिखा। आप लिखते हैं कि इब्तिदाअन यानी शुरू में मेरा ये गुमान था कि ये फिरका बरेलवी पाक व हिंद के बाहर नहीं होगा, मगर ये गुमान यानी जो मैं ये ख्याल कर रहा था कि पाक व हिंद के बाहर ये फिरका बरेलवी नहीं होगा, ये गुमान ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह सका, मगर कायम नहीं रह सका ये गुमान। मैंने यही अकायद यानी बरेलवी अकायद मशरिक़ के आखिरी हिस्से से मगरिब के आखिरी हिस्से तक और अफ्रीका से लेकर एशिया तक सारे इस्लामी ममालिक में मैंने ये अकायद देखे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो 3 वहाबी उलमा के 4 हवाले मैंने पेश करके ये बता दिया कि वहाबी उलमा भी ये तस्लीम करते हैं, गैर मुक़ल्लिद उलमा भी, कि बरेलवियत यानी अहले सुन्नत ही हक है। पहले सारे मुसलमान अहले सुन्नत के थे, तो पता चला अब जितने फिरके हैं बनामे इस्लाम ये सब नए हैं, लिहाजा इन नए निकलने वाले फिरकों से ईमान बचाना है और अपने दामन को उसी मसलक से जोड़ना है जो 1400 साल मसलक, 1450 साल मसलक है, जिसे अहले सुन्नत कहा जाता है। और इस दौर में इसकी पहचान बरेलवी यानी मसलक आला हजरत कहा जाता है। इतनी तफसील के बावजूद, वहाबी उलमा के इकरार के बावजूद के बरेलवी पुराना मजहब है, अगर आज कोई बदबख्त कहता है, चाहे मिर्जा इंजीनियर कहो, चाहे देवबंदी कहे, चाहे लेदीज कहे कि बरेलवी नया मजहब है, इतना सुनने के बावजूद कहे कि बरेलवी नया फिरका है, नया मजहब है, ये रज़ाखानी फिरका है, तो उस पर अल्लाह तबारक व तआला की लानत ही भेजी जा सके। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों पर लानत बरसाए। इतना ही कहते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। मिर्जा अली इंजीनियर के उस वीडियो में और जो एतराज़ात हैं, इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही तो उसका जवाब फिर कल पेश करूँगा। मैं अपनी तमाम सामीन नाज़रीन से गुजारिश करता हूँ, बिलखुसूस उन तमाम सामीन नाज़रीन से जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल मोहम्मद हफीज़ अहमद खान रज़वी को सब्सक्राइब फरमा लें और मेरे वीडियोस अगर पसंद आते हैं तो इसे लाइक करने के अलावा सदक़े जारिया के तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर फरमाएं और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का इजहार करना ना भूलें। रब तबारक व तआला से दुआ है कि रब तबारक व तआला हमें इश्क़ रसूल में जीने और मरने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए और मरते दम तक मसलक अहले सुन्नत यानी मसलक आला हज़रत कायम दायम रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और ख़ातिमा फरमाए, तो ईमान पर ख़ातिमा अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।